तो ये और बच्चे कैसे कर रहे हैं? सबको मिला होगा? हाँ जी, सबको मिला, ग्रुप्स वो करे बने हैं। तो आप ये भी चेक करते हो कि किसने किसी के लिए तो नहीं ऑलरेडी? हाँ, ये चीज़ होती है कि मतलब सेम पर्सन के पास नहीं जा सकते। वो ग्रुप होगा आपका कोई व्हाट्सएप पे? हाँ जी। हाँ जी सर। एक और किस CA के पास विजिट किए? जो टीचर है वो एक लिस्ट हमको बना के दे देती एक है। बार पहले कॉल भी आया था, पता नहीं आपके था? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। आपने 5:30 का टाइम नहीं नहीं, 3-4 दिन पहले आया, कल आया था। हाँ, दिन में सुबह 11 साढ़े 11। अच्छा, थोड़ा ये हटा बंद कर दूँ क्या? नहीं कोई So sir, good morning. We are the students of Christ University and we are here to take an interview. And sir, so my first question is what type of work an auditor does and how did you become a chartered accountant and what's your journey? My journey is, my name is Mayank Agarwal and I am from Modinagar and I have been practicing since 2017. So I passed in 2017 only. So I was basically a commerce student in 11th, 12th. I took accounts and studied all the subjects and ऑडियो रिकॉर्डिंग। ये अब ये ना ये बंद कर दीजिए अब, थोड़ा सा आवाज़ और डिस्टर्बेंस तो भी आ रहा है थोड़ा। नहीं, वो थोड़ा बहुत वो एडिट हो जाएगा। Good morning, sir. We are the students of Christ University, Delhi NCR, and we are here to take an interview. And sir, my first question to you is, what type of work an auditor does, and how did you start your journey of chartered accountants? Okay, my name is Mayank Agarwal and I am an FCA. FCA means CA who is qualified for more than 5 years. So I qualified in 17 and I am basically from Modinagar and I studied in St. Teresa's Academy, ICSC board. So from I took commerce as a subject rather than science because I was more interested in commerce. So after that I pursued CA just because a lot of people in my area were doing CA, so I also thought that I should do it. So it's been a journey like that, like taking coachings and studying and doing all that up down from Delhi. So what was your next question? Sir, the next How question did you is, start your audit? how does an auditor work? Auditor work like from the starting. Yeah. Yes sir. How Say does- how is an audit conducted? What is the process of it? So there are two types of audits, internal and statutory. जो mainly दो audit होते हैं, statutory and internal. Internal audit is appointed by the management, like the board of director appoint an internal auditor to check all the financial controls and vouching is proper or not, and all the statutory compliances are being done properly and the accountants are doing like we have to visit every day or every week or by fortnightly we visit or monthly, and in statutory audit we have to visit once a time, one time in a year, 1 or 2 times. So internal auditor is more biased, like he is in favor of the company because he has to do all the compliances, वो सब कुछ चेक करता है कि सब चीज़ सही हो रही है या नहीं हो रही है। और स्टैट्यूटरी ऑडिटर को गलती निकालना होता है मेनली, मतलब बताना कि क्लियर भी कराना होता है, बट मेन ये होता है कि वो रिपोर्ट में सब चीज़ डालता है कि ये गलत हो रहा है। इंटरनल ऑडिटर की फीस भी अलग होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अलग होती है। इंटरनल ऑडिटर बेसिकली वो उसे मैनेजमेंट अपॉइंट करता है कि हमारी गलतियाँ सही कराएगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ये काम नहीं होता, वो रिपोर्ट देता है, वो आपको खुद ही सही करनी है। तो ये मेन जो दो ऑडिट होते हैं, इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी। So when we are assigned an audit like internal, so we first we visit the premises and then we discuss the matter with the management, like the board of director और जो मालिक हैं या लाला है उनके कंपनी के,
उनसे हम डिस्कस करते हैं कि आपको क्या हमसे चाहिए। फिर वो हमसे बताते हैं कि भाई ये वाला पार्ट आपको देखना है। जैसे कंपनी में कई सारे पार्ट होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सारी चीज़ें हमें देखनी है, भाई लेबर को हम नहीं देखेंगे या कुछ भी है। तो उनके भी ऑलरेडी कई सारे एडवाइज़र होते हैं, जैसे लेबर एडवाइज़र हो गया जो ESI PF देखता है, कोई TDS भी वो शायद बाहर से करा रहे होंगे, तो वो सारे काम हमें नहीं करने होते। हमें उनसे पहले पूछना होता है कि हमारा क्या स्कोप रहेगा। तो जैसे उन्होंने बताया कि आपको इस दिन आना है और इस दिन आपको अकाउंट्स चेक करने हैं, टैली चेक करनी है, बिजी चेक करना है और ये देखना है कि सब चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं। तो वो खाली फिर हमारा उतना स्कोप हो गया, मतलब स्कोप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, हम नहीं करते हैं। फिर उसकी अगर स्कोप मैनेजमेंट ने कि आप TDS रिटर्न भी चेक कर लो, यू ऑल्सो हैव टू डू द GST रिटर्न्स, तो देन वी विल चार्ज एक्स्ट्रा फॉर दैट। तो इस तरह से इंटरनल ऑडिट के लिए पहले मीटिंग होती है, सेम स्टैट्यूटरी ऑडिट में होता है। पहले मीटिंग मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट में तो सारे काम हमें करने ही पड़ेंगे। स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या है कि अगर रिपोर्ट में सारे पॉइंट आते हैं, टैक्स ऑडिट होता है, और तो उसमें जो जो पॉइंट हमारे रिपोर्ट में है वो हमें चेक करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ने बताया कि अब ये छोड़ दो, ये देख लो। इंटरनल में तो बायस्ड हो गया ना, वो मैनेजमेंट ने बताया कि आप TDS देख लो, GST तो वो देख रहा है, तो हम TDS के लिए लायबल हैं, और स्टैट्यूटरी में हमें सब चीज़ देखना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है। तो अगर स्टैट्यूटरी की बात करें तो पहले हम जैसे बुक्स में देखते हैं ओपनिंग बैलेंस, लास्ट ईयर अगर CA दूसरा था तो उसने बैलेंस शीट में क्या क्या डाला है, उसके ओपनिंग बैलेंस इनकॉर्पोरेट हो गए या नहीं हो गए, सबसे पहले देखते हैं। अकाउंटेंट जो अब काम कर रहे हैं वो किस लेवल पे हैं, कोई CA हैं ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा काम हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि CA ऑलरेडी अकाउंटेंट है जो कर रहा है इंटरनली। तो ऐसे ऐसे करके प्रोसीजर बनता है धीरे धीरे। फिर ओपनिंग बैलेंस के बाद हम वाउचिंग शुरू करते हैं। कि वाउचिंग क्या होता है, बेसिकली वाउचिंग बेसिक डॉक्यूमेंट होता है कोई भी एंट्री चढ़ाने के लिए। जैसे आपने रेंट पे करा तो यू विल बी हैविंग अ रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीट। तो अगर हमने टैली में एंट्री देखी कि रेंट तो कैश की एंट्री डली हुई है, तो हम दो चीज़ चेक करेंगे, एक तो कैश किसने पे करा है और रेंट का एग्रीमेंट है या नहीं है, रेंट की रसीद है या नहीं, रेंट पे TDS काटा है नहीं काटा। बेसिकली लेजर स्क्रूटनी होती है, जो भी खर्चे मैनेजमेंट क्लेम कर रहा है उनके पास सपोर्टिंग होनी चाहिए। जैसे सेल बुक कर रहा है तो GST R1 में चलेगी, मतलब GST में चलेगी, टैक्स पे होगा तो एक नंबर की सेल होगी, नकली सेल नहीं है ना, एक नंबर में होगी तो GST पेड है। और P&L इधर राइट साइड में हो रहा है, खर्चे यहाँ डाल रहे हैं। खर्चे के लिए सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर से आ जाएगा। परचेज जो है वो पोर्टल से चेक हो जाती है, उस पर अगर GST लग रहा है तो पोर्टल पर आ रहा नहीं आ रहा। अगर विदाउट GST वाली है तो परचेज के बिल है, उन पर साइन है, उसका लेजर देखा कि बैंक से पेमेंट है। एक्सपेंस के लिए अगर ट्रैवलिंग है तो उनके वाउचर होने चाहिए, पेट्रोल डीजल के, सैलरी है तो सैलरी शीट होगी। तो बेसिकली एक एक चीज़ को हमें ये देखना है कि हमारे पास उसका वाउचर होना चाहिए। तो चेक करते हैं। हाँ, बैलेंस शीट P&L के बाद बनती है। जैसे डेटर क्रेडिटर है तो परचेज चलोगे तो डेटर क्रेडिटर नीचे चल रहे होंगे बैलेंस शीट में, तो उनके लेजर देखने होते हैं। और तो इस तरह से मतलब एक एक लेजर को देखना होता है, एक एक लेजर हमें पता होना चाहिए कि मतलब वो कैसे बना। So what are the main reasons for an audit? What action result in an audit being conducted? First of all, statutory audit is a statutory requirement. Like every company has to undergo audit. Private limited. For proprietor, there is a limit of 1 crore, Yes. and LLP 50 lakh, 40 lakh. So first there is a statutory requirement. Second, अगर statutory audit अगर करना है तो वो तो statutory requirement है, या कई बार वॉलंटरी भी बोल देते हैं। कई बार जैसे बैंक में बैलेंस शीट देनी है तो भाई आप ऑडिट करा के आइए तो हम आपको लोन दे देंगे। कई सारे बैंक्स भी मांगते हैं। बैंक बेसिकली बैलेंस शीट मांगते हैं, वो ऑडिट रिपोर्ट नहीं मांगते। तो बैलेंस शीट अगर हम बना के किसी को साइन करके दे रहे हैं तो ऑडिट ही हो गया। और दूसरा होता है कि इंटरनल ऑडिट जो होता है वो कंपनी के केस में तो 200 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर लगता है, पर कई कंपनियों में अपनी आप भी अप्लाई करा लेते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि कोई CA आके देखता रहे तो इट वुड बी बेटर फॉर अस। जैसे मैं मोदी नगर में करने जाता हूँ तो वहाँ अप्लाई नहीं होता है, बट वो कराते हैं, तो इसलिए रिक्वायरमेंट है। Sir, what are the rights and duties of an independent auditor? राइट्स एंड ड्यूटीज।
राइट्स की बात करते हैं तो राइट्स ये हैं कि जो भी हमारी रिपोर्ट होती है, जैसे मैंने पहले बताया था, जो भी हमारी रिपोर्ट होती है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, उसका हमें एक एक पॉइंट टिक करना होता है। तो इफ द पॉइंट इज डिमांडिंग दैट आई हैव टू चेक बैंक स्टेटमेंट सपोज, तो बैंक स्टेटमेंट मुझे हाथ में चाहिएगा तभी तो चेक होगा। और बैंक अगर मैनेजमेंट सेइंग दैट आई विल नॉट प्रोवाइडेड, तो वो मेरे लिए क्वालिफिकेशन हो जाएगा कि मुझे डॉक्यूमेंट नहीं मिला, तो ये तो मेरा राइट है। सर इसके लिए कोई लाइबिलिटी होती है अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या वो दे नहीं है या कंपनी? तो आपके पास ऑडिट रिपोर्ट होती है, यू कैन Audit मेंशन, report होना। आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट एडवर्स हो गई है या क्वालिफाई हो गई है या डिस्क्लेमर, 3 ऑप्शन होते हैं। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट नहीं मिला, डेटर क्रेडिटर सब्जेक्ट टू रिकंसिलिएशन है, स्टॉक का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया क्योंकि स्टॉक में फिजिकल चेक करूंगा वो तो स्टॉक ऑडिटर करेगा। तो हर चीज़ की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ऐसा नहीं कि सारे ही काम करने होते हैं। स्टॉक ऑडिटर अलग होता है या जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वही है? स्टॉक ऑडिटर बेसिकली क्या होता है, स्टॉक ऑडिट उनका होता है जहाँ किसी कंपनी ने लिमिट ली हुई है बैंक से। अब लिमिट क्या होती है? लिमिट होती है जैसे ओडी आपने सुना होगा, ओवरड्राफ्ट, Yes, yes. ऐसी कैश क्रेडिट लिमिट होती है। तो उसका फॉर्मूला होता है स्टॉक डेटर माइनस क्रेडिटर इनटू 70%, उतना लिमिट आपको मिलती है। तो जब हम बैंक से लिमिट लेने जाएंगे तो हमने बैंक में दिया कि मेरा स्टॉक है 1 करोड़, डेटर है 2 करोड़, क्रेडिटर है 1 करोड़, तो 2 करोड़ बचते हैं, इनका 70% यानी 1 करोड़ 40 लाख का मुझे लोन चाहिए। तो स्टॉक जो हम देंगे बैंक को, तो बैंक चेक करने आता है, बैंक किसी सीए को साइन करता है कि आप वहाँ जाके ऑडिट कराइए कि 2 करोड़ का स्टॉक है भी या नहीं, तो दैट इज स्टॉक ऑडिट। और सर ये फिजिकल वेरिफिकेशन कौन करता है? फिजिकल वेरिफिकेशन किस चीज़ में? Like, एसेट्स का या वो फिक्स्ड एसेट्स ऑडिटर होते हैं, वो भी वो इंटरनल ऑडिट का ही पार्ट है। मान लो मैं इंटरनल ऑडिट करने गया, उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप ना यहाँ पे टैगिंग कर दीजिए, जैसे कुर्सी है, टेबल है, तो ये फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर में तो इतनी है, टेबल दिख रही है हमें 4 है, तो आप एक बार चेक करवा लीजिए, तो वो पार्ट होता है इंटरनल ऑडिट का, वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। Sir, can you walk through your experience with conducting financial audits, including the types of audits you have performed and the industries you have worked with? Like I can't name the clients, but I can surely tell what type of clients. But like one is a mustard oil client, mustard oil production, Okay. and second is a aluminium packaging company, जिसमें वो दवाई आती है ना, जो पैकिंग होती है उसकी। Yes. So they are having a 300 crore turnover, and this oil company is also having high turnover. One is RMC company, ready mix concrete. Like suppose a building is made, so they require ready mix concrete. Like they don't want to mix on the site, तो वो दूसरी कंपनियों को असाइन कर देते हैं कि आप हमें रेडी मिक्स कंक्रीट ला के दे दीजिए, उससे बिल्डिंग बन जाएगी। तो उसमें क्या होता है, 4 घंटे का टाइम होता है। जैसे अगर 4 घंटे में सीमेंट खराब हो जाता है ना, तो वो आसपास की ही कंपनीज को चुना जाता है जिससे कि वो जल्दी से ट्रक वहाँ से आ जाए। तो और वन इज दिस सोसाइटी RWA, सोसाइटी इज गवर्न बाय RWA ना, Yes. उसमें प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, तो ऐसी 2 RWA मेरे पास। तो वहाँ पे हमें ये चेक करना होता है कि फ्लैट से कितना मेंटेनेंस आ रहा है, वो एक्सपेंस कहाँ कहाँ हो रहा है, उनके बिल्स हैं या नहीं है, Yes. उनकी भी बैलेंस शीट बनती है। एंड वन इज आई थिंक अ यूट्यूबर बाय द नेम ऑफ Twin Strings. So they are having export income, like because on YouTube you have to issue invoice to Google. So Google is American based company, तो एक्सपोर्ट सर्विस होती है उसमें, और एक्सपेंस उनके ट्रैवलिंग होती है। एंड वन इज ऑनलाइन सर्विस, वन क्लाइंट इज ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइडर बाय द नेम ऑफ एग्जाम्पल, तो दे हैव सब्सक्राइबर्स ऑफ अराउंड 1 crore. So they also provide service on YouTube also, and also sell books. Okay. सर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट जैसे टैक्स ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट वो भी कंडक्ट करते हैं? Cost audit is conducted by CMA, Chief Cost Management Accounting. But I have prepared CRA2, उसमें एक फॉर्म जाता है CRA2 और CRA3 वो मैंने भरा है। तो उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट वाइज आपको कॉस्ट देनी होती है। जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए जैकेट बनाती है, तो जैकेट बनाने में क्या क्या कॉस्ट लगती है, रॉ मटेरियल क्या होता है जैकेट का, क्या होगा,
क्लॉथ और कॉटन कॉटन होता है चेन्स हो गई कोई वूल हो गया, Chain, wool, तो हाँ। वो वूल कितने का आ रहा है, उसकी कॉस्ट क्या है, Buttons, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, तो वो ऐसे करके कॉस्ट रिपोर्ट निकलती है। और टैक्स ऑडिट जो होता है वो टैक्स मतलब टैक्स की कंप्लायंस देखी जाती है। yes. प्रॉपर्टी सेल करिए तो उसमें मतलब एक किसी कंपनी के 2 ऑडिट हमेशा होंगे, एक तो कंपनी ऑडिट होगा और अगर उसका टर्नओवर 1 CR से ऊपर होता है तो टैक्स ऑडिट भी होगा, Okay. अगर 1 CR से नीचे है तो खाली कंपनी ऑडिट होगा। Okay. और प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में कंपनी ऑडिट नहीं होता, खाली टैक्स ऑडिट होता है। मतलब स्टैट ऑडिट जो हम बोलते हैं वो कंपनी के केस में बोला जाता है, क्योंकि कंपनी में हमेशा होगा ही होगा, चाहे जीरो टर्नओवर हो। पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप में 1 CR से ऊपर होता है। सर क्या आप हमको बता सकते हैं कि ऑडिटिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है स्टार्टिंग से, किस तरीके से ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, कंपनी कैसे चूज़ करती है किसको अपॉइंट करना है, तो ये कंपनी में बताना है या कंपनी कॉन्टेक्स्ट में मतलब कंपनी किस तरीके से चूज़ करती है, देन आप क्या प्लानिंग करते हो, मतलब आपकी टीम कैसे सेलेक्ट होती है फिर? कैसे आगे वो बढ़ते हो? प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से प्लानिंग होती है कि क्या चीज़ की किस Planning तरीके से process ऑडिटिंग and करनी है। planning procedure. एक तो प्रोसेस होता है कि पुराना ऑडिटर का रेजिग्नेशन हो गया, वो पूछ रहे हो आप या मतलब कैसे? कंपनी जैसे कोई कंपनी अपॉइंट कैसे करती है, जैसे Sir, एक 5 इयर्स का टर्नओवर होता है वो एंड हो गया तो उस सेम ऑडिटर को रिअपॉइंट नहीं कर सकते, तो नया ऑडिटर कैसे कंपनी चूज अच्छा। करती है, ऑडिटर कंपनी को अप्रोच करता है कि नहीं, उसमें एक्चुअली जो भी काम आता है ना सीए के पास वो लिंक से आता है। जैसे इफ आई एम नोइंग अ क्लाइंट तो उनका कोई फ्रेंड है वो भी प्राइवेट लिमिटेड कोई चला रहा है तो वो मुझे अप्रोच करता है। कभी सीए एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने बोर्ड भी कभी देखा होगा तो वाइट पे ब्लू पट्टी मिलेगी या ब्लैक, ना कभी आपको यूट्यूब पे ऐड मिलेगा, तो ना कोई ऐसे एक्स्ट्रा वेरिएंट सा कुछ दिखेगा कि भाई चमकना सा बोर्ड है। तो इसलिए थोड़ा सा एक वो बनाया हुआ है कि हमें अप्रोच नहीं करना होता क्लाइंट वुड अप्रोच हिमसेल्फ ओनली। बट यूट्यूब पे तो खैर पढ़ाई वाला होता है, जैसे मैंने भी चैनल बनाया हुआ है ये वाला, तो इसमें तो हम वीडियोस वैसे डालते हैं कि जिससे कि हम नॉलेज इम्पार्ट कर सकें, बट उसका पर्पज इनकम नहीं होता। तो इसमें अच्छा क्या पूछ रहे थे, ऑडिट का प्रोसेस क्या होता है? इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कंपनी ने हमें अप्रोच करा तो फिर वो हम उससे ADT 1 फॉर्म होता है अपॉइंटमेंट का, वो फिल कराती है। उसमें हम कंपनी में बोर्ड रेजोल्यूशन बनवाते हैं, लेते हैं कि भाई बोर्ड और डायरेक्टर की मीटिंग के बाद हुआ ऐसा। तो जो कंपनी को कौन चलाता है, डायरेक्टर चलाते हैं ना, और शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो owners मेंबर हैं। होते हैं। तो शेयर होल्डर कंपनी की डे टू डे एक्टिविटी में नहीं होते हैं। हाँ वो मैनेजमेंट तो ऑडिटर अपॉइंटमेंट बोर्ड और डायरेक्टर करता है। पर अब शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा कौन ऑडिटर है? हाँ जी। उनकी भी तो वो चाहिए ना मंजूरी, तो उसके लिए AGM में रेटिफिकेशन होता है। जैसे आपने सपोज आप 3 लोग की कंपनी चला रहे हो, आपने एक कंपनी बना दी, उसमें मुझे अपॉइंटमेंट कर दिया, अब शेयर होल्डर सपोज आप तीनों के मम्मी पापा हैं, अब आपने कोई ऐसा ऑडिटर अपॉइंट कर दिया जो लॉस ही करे जा रहा है, तो आपके मम्मी पापा को कैसे पता चलेगा? AGM में, एनुअल जनरल मीटिंग, वो शेयर होल्डर्स की होती है। तो उसमें वो रेटिफिकेशन होता है कि आपने जिस CA को अपॉइंट करा था वो सही भी है या नहीं। तो ये प्रोसीजर होता है। पहले ADT 1 फाइल होता है, उसमें आप लोग कर दोगे जो डायरेक्टर है, फिर उसके बाद रेटिफिकेशन होता है, दोबारा ADT 1 फाइल होता है। सर अगर शेयर होल्डर मीटिंग में अगर उन्होंने कहा कि ये CA नहीं रखना है, उसमें क्योरम देखा जाता है, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। Okay. स्पेशल रेजोल्यूशन पढ़ा है आपने? यस सर, वोटिंग होती है basically. तो उसमें परसेंटेज होते हैं ना, इतने Yes, लोग अगर sir. मान गए हैं Majority बस के वो- basis में. Okay. तो सर आपकी प्लानिंग क्या होती है, मतलब जो किस एक सर्टेन उसकी ऑडिटिंग करनी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, मतलब इंडस्ट्री वाइज। हाँ इंडस्ट्री वाइज भी और इन जनरल भी। सर आप कैसे चूज करते हो कि आपको करनी है इस कंपनी की ऑडिटिंग या नहीं? फर्स्ट तो पहले फीस देखी जाती है, दूसरा अप्रोचेबिलिटी देखी जाती है कितना दूर है। सर ये फैक्टर वो मतलब कंसिडर किया जाता है कि कोई कंपनी ज़्यादा फीस दे रही है तो उसमें कुछ उनको प्रेफरेंस दिया जाए सर्टेन चीज़ों में, कि किस चीज़ की ऑडिटिंग को इतना स्ट्रिक्ट ना रखा जाए। नहीं ऐसा नहीं होता, वो तो फिर हमारे ऊपर लायबिलिटी का हाँ, वो तो नहीं फिर है। और एक्चुअली कोई अगर अच्छी कंपनी चलाने वाला होगा वो चाहेगा भी नहीं कि मैं अपने फेवर में कोई पॉइंट दूँ। हाँ ज़्यादातर जो अच्छे लोग होते हैं ना वो अपनी बुक्स को क्लीन ही रखना चाहते हैं। हाँ जो थोड़ा सा अपने ये लोकल लाला टाइप लोग होते हैं इनकी बुक्स खराब मिलेंगी। सही है।
सर आपको ऐसे केसेस मिलते हैं यूजुअली जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं? मतलब खराब जो मिलते हैं फिर तो रिपोर्ट में पॉइंट डाल देते हैं। जैसे कई बार डेटर क्रेडिटर का हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन चाहिए होता है। भाई आपने कोई बुक्स में 1 करोड़ रुपए दिखा रखे हैं कि मुझे इससे लेने हैं, उसको कंफर्मेशन भी तो चाहिए ना कि हाँ उसको देने हैं या नहीं। हाँ जी। तो वो कंफर्मेशन नहीं आता है तो वो लिखना होता है। So how do you identify material misstatement and what is your procedure to collect audit evidence? मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो देखिए ऐसा होता है, जैसे अब मटेरियलिटी जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो अलग होती है और हम प्रैक्टिकली बहुत अलग होता है। जैसे आपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी पढ़ा होगा, तो ऐसा होता है जैसे किसी का 100 करोड़ का टर्नओवर है, अब मैं वहाँ पे उसको बोलूँ कि इसमें आपने 10 रुपये की गलती कर दी है, तो वो अमेंडेबल है, उसको रिपोर्ट में डालने का कोई पॉइंट नहीं है। पर उसमें अगर ऐसा लगता है कि एक पार्टी है जिसको बिल काटा जा रहा है और पेमेंट नहीं आ रही है, तो वहाँ पे उसको लिखा जाएगा। मतलब इसको मैं ना कोई डेफिनेशन नहीं दे सकता हूँ मैं कि भाई हम कितना मटेरियल को मानेंगे कि मटेरियल है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि किसी क्लाइंट की बुक्स एकदम क्लीन है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे हमें छोटे पॉइंट भी डालने पड़ जाते हैं। तो रिपोर्ट हमें दिखानी पड़ेगी ना कि हाँ कुछ नहीं, मतलब ऐसे कि भाई हाँ चेकिंग हुई है, क्लाइंट को भी तो लगना चाहिए कुछ चेक कर रहे हैं। अभी अब उसमें गलती निकले जा रही है, उसमें निकालूं कि ये यहाँ पे 100 रुपये का बिल गलत चढ़ गया है, तो वो ज़्यादा रिपोर्ट बढ़ जाएगी, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे हम सोचते हैं कि जो मेन पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। सर आपने किसी उसमें देखा जब आप ऑडिट कर रहे थे तो आपने कभी नोटिस किया कि कोई बहुत ज़्यादा फ्रॉड निकल रहा हो? कोई बड़ा स्कैम, कभी बड़ा फ्रॉड निकल रहा हो? नहीं, ऐसे तो नहीं होता है। एक्चुअली स्कैम वाली कंपनियाँ अब तो खैर इतना स्कैम बंद हो गए हैं उस तरह के जो पहले होते थे 20-25 साल पहले। अब अगर होते भी हैं तो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, तो हम तो थोड़ा बेसिक लेवल पे बैठे हैं अभी। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई छोटा ऑडिटर है, उसमें वो बड़ी कंपनीज हायर करते हैं ज़्यादातर। सर हाउ डू यू कलेक्ट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस? एविडेंस तो एविडेंस के लिए क्या होता है, जैसे किसी सॉफ्टवेयर में उनकी अकाउंटिंग हो रही है, तो सॉफ्टवेयर का जैसे जर्नल का पूरा प्रिंट आउट निकल जाता है, बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट आउट निकाल लिया जो चढ़ा हुआ है टैली में, फिर उसको फिजिकली बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई कर लिया, और क्लोजिंग जैसे बैलेंस शीट में जो जो क्लोजिंग चीज़ें आ रही हैं उनके सर्टिफिकेट हमने फाइल में लगा लिए। सर पासबुक देखते हैं? पासबुक नहीं होती है, वो तो बैंक स्टेटमेंट होता है। पासबुक तो इंडिविजुअल का होता है, ओके। कंपनीज का तो बैंक स्टेटमेंट होगा ना। तो पासबुक प्रिंट कराने में तो सालों लग जाएंगे उनको, जिनकी ट्रांजेक्शन बहुत सारी होती हैं। Sir, how do you reduce the risk of error in your audits? And have you ever developed a system to ensure accuracy? नहीं, सिस्टम डेवलप करना तो इंटरनल ऑडिटर का काम है। Okay. कि वो अगर हम एज ए इंटरनल ऑडिटर जाते हैं तो हम वहाँ पे रीको बनवा देते हैं। जैसे जीएसटी है मान लीजिए, तो इनपुट जो है बुक्स का, जो बुक्स में इनपुट हम क्लेम करने पर जिसके बिल चढ़ा रहे हैं वो पोर्टल से मैच हो रहा है नहीं हो रहा, पोर्टल पे उतने बिल आ रहे हैं, तो उसका रीको बना देते हैं कि मतलब इस मंथ आया, नेक्स्ट मंथ नहीं आया, इस मंथ आया, तो वो सब जब वो फीड करेंगे तो क्लोजिंग मैच हो जाता है। तो इस तरह से ना इनकॉर्पोरेट कराई जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे कई सारे ऑडिट होते हैं, उनकी डेट उन्हें याद दिलाने के लिए वहाँ पेपर उनको प्रिंट करके दिया कि भाई ये याद रखो आप इसको, TDS के सेक्शन का प्रिंट लगा दिया, अकाउंटेंट्स को एजुकेट करा, जिससे कि थोड़ा सा शुरू में हमें मेहनत करनी पड़ती है, बाद में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो अकाउंटेंट्स ही नॉलेजेबल हो जाते हैं। हाँ, तो उससे रिस्क भी रिड्यूस होता है। हाँ, तो उससे वो उस जैसे अभी क्या होता है, जैसे किसी पार्टी से आपने माल खरीदा है तो उसका वो पार्टी अगर बोगस निकल गई तो आपका ITC जो है ब्लॉक हो जाता है। तो उस ITC को ब्लॉक हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि हाँ हमने जेन्युइनली माल खरीदा था। अब उसके लिए क्या प्रूफ चाहिए, क्या चाहिए आप बताओ? बिल तो आप फर्जी बनवा सकते हो किसी का भी, एक्चुअल पेमेंट बैंक से पेमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, और क्या होता है? फिजिकल वेरिफिकेशन। वो तो माल बिक गया, फिर क्या होगा? सर और जो एविडेंस आपने कलेक्ट किया उसके बेसिस पे? हाँ, एविडेंस में अब जैसे टोल है, अगर वो माल आया कहीं से टोल पर्ची भी होगी, कहीं दूर से माल आया होगा, गाड़ी जो है उसकी फोटो, काटा पर्ची जो वो वेट तोला होगा, हाँ। वो सब एविडेंस अगर आपके पास होता है तो आप वहाँ डिपार्टमेंट में सबमिट कर सकते हैं। तो ये इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है कि आपको ये चीज़ें लेनी है, उससे रिड्यूस हो जाता है रिस्क। सर ट्रांजैक्शन ID भी तो होगा?
अगर ऑनलाइन पेमेंट है हाँ वो तो बैंक स्टेटमेंट हो जाएगा, पर एक्चुअली ऐसा भी होता है ना, कई बार क्या करते हैं कि बिल नकली ले लिए, पेमेंट भी कर दी। सर आपने कभी कोई फोरेंसिक ऑडिट कंडक्ट किया है, और मतलब एक नॉर्मल ऑडिट और फोरेंसिक ऑडिट में डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मल ऑडिट में क्या होता है कि जैसे हम किसी कंपनी में ऑडिट करने गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि ये टेबल जो है ये मैंने 3,000 रुपये की ली है, तो हम उसका ये कैसे पता करेंगे टेबल है नहीं है, नहीं 3,000 रुपये का, ये मेरे स्कोप में नहीं है। हाँ, मेरा स्कोप ये कहता है कि बिल चेक करो, जो ऑडिटिंग की बुक में हम पढ़ते हैं ऐसे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है ना, वो कौन सा है, एविडेंस का ही मान लो 230 ही मान लो, Standard of audit evidence 500. That's 500. 500, हाँ 230 कौन सा है, Independent auditor का? वो 99 है, वो तो नहीं, वो तो जॉइंट ऑडिटर है। 210 है I think। तो जैसे कि टेबल है, तो ये टेबल अब मुझे तो ये ऐसे मेरा कहता है कि आप बिल ले लो। Documentation और हाँ, documentation हाँ, related. हाँ वही, तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि बस बिल ले लो, ये पार्टी को पेमेंट कैसे हुई है ये देख लो, माल आया नहीं आया, मुझे तो नहीं पता है। अभी टेबल एक्चुअल में कितने की है ये फोरेंसिक ऑडिटर देखेगा, क्योंकि वो उसको पार्टी को कॉल करेगा, वो जाएगा पूछेगा, तो ये फोरेंसिक ऑडिट होता है। कि आपको फोरेंसिकली देखना है कि ये टेबल एक्चुअली में 3,000 की है भी या नहीं, तो ये 1,000 रुपये की है। सर अगर एक्चुअली में वैल्यू में कोई डिफरेंस निकलता है तो उसका फिर आगे क्या प्रोसीजर होता है? वो तो फिर रिपोर्ट जाती है फोरेंसिक ऑडिटर की ना। फोरेंसिक ऑडिट वैसे गवर्नमेंट कंप्लाई कराती है, वो भी गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर, तो कोई वैसे नॉर्मल जैसे हम लोगों के आसपास गाजियाबाद नोएडा में कोई नहीं कराता है, क्योंकि सबको पता ही है, क्योंकि ज़्यादातर लाला कंपनीज होती हैं, जो मतलब डायरेक्टर है वही शेयर होल्डर है, उसको सब चीज़ें पता है, वही टेबल खरीद के लाया है, अब वो चाहे 4,000 का बिल लगा है उससे तुम्हें क्या लेना, मतलब सीए को। फोरेंसिक ऑडिट तो वो कराएगा ना, जो थर्ड पार्टी कराएगी इस पे, गवर्नमेंट कराएगी इस कंपनी में, क्योंकि ये कंपनी ऐसे लग रहा है कि घोटाला कर रही है। बैंक भी करा सकता है। हाँ So this was our last question. Thank you so much, sir, for your time. अच्छा लगा आपको बता के। सर हमें भी बहुत मजा आया आपसे सुन के। बहुत सेंड कर भी गया। Thank you so much, sir.